Good morning, students. In last class, what we have discussed, introduction part of the remote sensing, right? In which you have discussed about the basic concept of remote sensing, in which that is defined as the technique of obtaining information about the object through the analysis and the data collected by the spatial instrument that are not in physical contact with the object of investigation. Okay. And after that, we have discussed about the platforms and the remote sensing sensors. Then we have discussed about the uh, some history of the remote sensing, then elements involved in the remote sensing, then type of remote sensors are active remote sensor and the passive remote sensor. And this is the exact process of remote sensing in which energy interaction, radiation with atmosphere, and interaction with the object, recording of the energy by the sensor, and transmission, reception, processing, and interpretation and analysis. And last part is the application part. Okay. Today we are going to discuss about the platforms. What are the platforms? The base on which remote sensors are placed to acquire information about the Earth's surface is called the platforms. And these platforms are of two or three types mainly. First one is the ground-based. Ground-based are those type of platform. They are mounted on a simple crane on a vehicle. Okay, because you have to pick out the picture or the image from the distance part. And in this case, uh, ground base are the counted on those category. They are mounted all type of sensor. They are mounted on the uh, any type of vehicle or a device. Okay, and the second one is the airborne. Airborne are the mainly two type of airborne. They are the higher altitude data and the lower altitude data. And last one is spaceborne. Spaceborne, you already know that last part that is existing in the 36,000 kilometer above the Earth's surface. All right. Then there are, what are the data you are collecting the image. Okay, so this is image is also known as a data. So there is two type of data: in situ data and the remotely sensed data. In situ data collected by the some instrument, and we have already discussed in last class. In situ data are those type of data. Suppose you are there is a device. Suppose for example, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है आपका, तो थर्मोमीटर से डिवाइस आता है, एनीमोमीटर से हम एयर की स्पीड को लेते हैं. ठीक है, तो इन सब सारी चीजों में जब हीट आपकी बॉडी में होती है, तो वो जो हीट ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस आपको डिजिटल फॉर्म में दिखता है डेटा. तो जो कन्वर्जन के लिए जो डिवाइस यूज होती है, दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर्स. ओके, so these type of data are converted into the digital or the any other form or analog form. Okay, तो रिमोटली सेंस डेटा क्या है? रिमोटली सेंस डेटा वो है जो कि जियोग्राफिक, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया से हमने डेटा उठाया है. क्लियर? एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब हम ये देखें कि इस रिमोट सेंसिंग का एडवांटेज क्या है. इट प्रोवाइड रीजनल व्यू. ओके, तो बहुत बड़े लार्ज एरिया को कवर करता है. इट प्रोवाइड रिपीटेटिव लुक्स एट अ सेम एरिया. जब सपोज अगर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का मेरे को एयर व्यू लेना है, तो मैं एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, तो मैं रिपीटेटिव लुक्स को सेम टाइम सेम एरिया के ले सकती हूँ. जैसा कि आप लोगों ने सब परमाणु फिल्म में एक बार देखा ही हुआ है कि
वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम में एक रिपीटेटिव सेम एरिया का डेटा उठा के आपको देते थे। देन रिमोट सेंसर्स सी ओवर द ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, जस्ट ह्यूमन आईज का जितना एक लिमिटेशन है, बट जो इसमें है रिमोट सेंसर जो है वो बहुत ब्रॉडर एरिया को कवर करते हैं। दे आर द जियो रिफरेंस्ड। ओके, जैसे हम उनको गाइडेड रहते हैं जिसमें कि हम जियो रेफरेंस हमने उनको उसमें कोडिंग कर दी कि इस लैटिट्यूड से लेके इस लैटिट्यूड का डेटा चाहिए, तो वो उस तरीके का डेटा हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिमोट सेंसर ऑपरेट इन ऑल सीजन एट ऑल नाइट एंड इन still in bad weather also they are operating perfectly. द मेजर डिसएडवांटेज क्या है? अब किसी भी चीज का एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। तो जब डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, because these type of cameras and the startups are very expensive, and then it need ground verification। अगर पर्टिकुलर किसी एरिया का इमेज है और एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता नहीं है, तो हम क्या वेरिफिकेशन करते हैं? उस पर्टिकुलर प्लेस की कुछ मेन चीजों को, जैसे बेस लाइन में अगर कलवर्ट है, कोई डैम है, कोई रिवर है, कोई रोड है, तो उससे हम क्या करते हैं? ग्राउंड से वेरिफिकेशन करना कंपलसरी होता है। ओके, एंड इट इज नॉट बेस्ट टूल फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया को कवर करने के लिए हम कोई दूसरी चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो हम बड़े एरिया को ही कंसीडर करते हैं। नीड एक्सपर्ट सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट डेटा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि विजुअल इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स, जो वीडियो इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली रखता है, तो वो ही इन चीजों को डीकोड कर सकता है। ओके, तो जब तक किसी परफेक्ट पर्सन की इसमें एक्सपर्टीज नहीं होगी, वो आपको इस पर्टिकुलर चीज से गाइड नहीं कर सकता। ओके, देन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग? देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। आर meteorology nowadays, देख ही रहे हैं आपके meteorology में रिमोट सेंसिंग और GIS का एप्लीकेशन का सबसे अच्छा होता है कि आप 2-4 दिन पहले से आपके पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर की फोरकास्ट पहले से आ जाती है आपको कि यहाँ पर 2 दिन से पहले से बारिश आने वाली है, इसके पहले यहाँ पर तूफान आने वाला है। तो बेसिकली इसका क्या एडवांटेज मिलता है हमको कि अगर कोई जिस तरीके से लास्ट प्लेस में आंध्रा में या केरला में जहां पर भी तूफान आने वाला था, तो जब हमने क्या किया था उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के हेल्प से उस पर्टिकुलर प्लेस पर लोगों को माइग्रेट कर लिया था, जिससे कि हम अपनी मतलब जनता की सुरक्षा कर सकते हैं और जो भी चीज जो मूवेबल है उसे शिफ्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलरली जान माल की हानि को बचा सकते हैं। ओके, देन कम नेक्स्ट वन इज ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और मैपिंग ऑफ ओशन करंट्स भी किया जा सकता है। ग्लेशियोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि आज की डेट में ग्लेशियर कितना शिफ्ट हुआ, कितना मेल्ट हो गया, उस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्लेशियोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज जियोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक। जैसे लास्ट क्लास में बात हुई थी कि कैसे हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज द रॉक बाय द रिमोट सेंसिंग, द टोन, टेक्सचर्स ना, और उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन है, एनोमली है, वो भी हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से। देन एग्रीकल्चर एरिया में मॉनिटरिंग के लिए होता है, जैसे वेजिटेशन में, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है कि जैसे सपोज आपने देखा कि ये बोला जाता है कि इस 2020 में हमने इतना दलहन की खेती का प्रोडक्शन होगा, इतना गेहूं का प्रोडक्शन होगा, इतना व्हीट का, इतना क्या कहते हैं चावल का प्रोडक्शन होगा। तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? वो
फील्ड में जाके नापने तो जाते नहीं है, तो क्या करते हैं, सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एरिया से इमेज से हम डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बेसिस पर फोरकास्ट करते हैं कि इस बार इतनी एरिया में इतना प्रोडक्शन होगा। ओके, देन हाइड्रोलॉजी में असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। हाइड्रोलॉजी में हम बहुत सारे वाटर रिसोर्स के, जैसे सैटेलाइट इमेज से कुछ ऐसे रिसोर्स पड़े हैं जो कि ड्राई अप हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। और फोरकास्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर रन ऑफ फ्रॉम द स्नो, ये तो सबसे ज्यादा है जो हमने अभी ग्लेशियोलॉजी में भी बात करी। तो जितने ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होकर मूव कर रहे हैं उसको भी हम इसी से एनालिसिस करते हैं। देन डिजास्टर कंट्रोल, वार्निंग ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, फ्लड की वार्निंग अगर पहले से हो तो ये चीजें हम बहुत इजीली कर सकते हैं। प्लस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन आल्सो, nowadays monitoring of pollution is also going on by this of remote sensing. So we can conclude here that in remote sensing so many applications are there. Okay, so in next class we will discuss the next part.